ओके, फिर से पढ़िए please. Factors affecting India's climate. Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. तो इंडिया का कैसा है क्लाइमेट? एक ही क्लाइमेट है या डिफरेंट है? दो क्लाइमेट, टेम्परेट एंड टॉरिड के बीच में मॉडरेट टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोल सकते हैं। टॉरिड और उसके जरा ऊपर भी जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट एल्टीट्यूड पढ़िए। व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड माने एल्टीट्यूड माने क्या? हाइट। एल्टीट्यूड को और एक बोलते हैं रिलीफ। प्लीज पढ़िए एल्टीट्यूड। Altitude. India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. और so क्या बता रहा altitude? What is altitude? India has mountain to the north which have an average. ऊपर mountains पढ़े सबसे पहले। Yes sir. Yes sir. The north. ठीक है, नॉर्थ है ऊपर, फिर नॉर्थ के पूरा नॉर्थ में क्या है अपना? माउंटेन्स है। ठीक है, उसके जरा नीचे आ जाओ। नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स है। उसके जरा नीचे आ जाओ, क्या दिखता है आपको? माउंटेन्स के नीचे आओ, क्या दिखता? वेस्ट में चले जाओ, नीचे आके वेस्ट में चले जाओ, क्या दिखता? डेजर्ट है। फिर ईस्ट में आ जाओ, क्या दिखता? प्लेन्स दिखता। फिर नीचे आ जाओ, घाट्स। वेस्टर्न पहले क्या पेनिनसुलर ब्लॉक दिखता आपको, सेंट्रल हाईलैंड्स दिखते। फिर नीचे आ जाओ, डेक्कन प्लेटू दिखता। फिर साइड में चले जाओ, डेक्कन प्लेटू के ये साइड वेस्टर्न घाट दिखता, ये साइड ईस्टर्न घाट दिखता। ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, राइट सर। सो ये क्या बता रहा है इन्हें? एल्टीट्यूड से क्या बता रहा है? ये एल्टीट्यूड की वजह से क्या हो रहा है अपने पास? The mountain Himalayas are stopping from the extreme winters. The Himalayas are stopping the air. They are stopping the wind. The wind is carrying the water. In the last class we have studied about, in the last session में पढ़े थे 71% water है और 28% कितना है? जमीन है। So these winds which are carried, winds are carrying the water, and the Himalayas, these altitude features are stopping the wind and taking all the moisture and then letting it go. तो अपने मानसून भी क्या है? मानसून नथिंग बट वही है। ठीक है, समझ में आ रहा? Yes sir. ओके, सो प्लीज जस्ट फिर से पढ़िए एक बार एल्टीट्यूड, फिर से पढ़ो। India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast... एक मिनट। India has... What India has? Mountains to the north. Mountains to the north. North. उसके बाद एवरेज हाइट कितनी है? वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो। 6,000 मीटर। उसके बाद कैसा? माउंटेन्स की वजह से क्या हो रहा? उसके बाद प्लीज रीड। India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. Elevation माने height. Then the Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. Himalayas क्या कर रहा? What is the importance of Himalayas? It prevents the cold winds.
इट प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड। नहीं तो अपन आज क्या हो गए थे, दिल्ली में सर्दी से मर गए थे। फिर भी कितना सर्दी पड़ती दिल्ली में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू दिल्ली इन द विंटर, इन दिस विंटर सीजन? No, तो कोई गए दिल्ली को अभी तक विंटर सीजन में? winter में नहीं गया सर। दिल्ली गए कभी? Yes sir. जी सर। सो अपने को क्या है, ये the Himalayas are preventing our earth to become, our India to become cold desert. ठीक है, 6000 मीटर। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया। व्हाट इज कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ये क्या है अपना? Western Ghats, ये क्या है? Eastern Ghats. ईस्टर्न घाट। ये एरिया क्या है? ये जो एरिया दिखा रहा, दिस इज नथिंग बट कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया। areas. दिस पानी द के लैंड। व्हाट इज कोस्टल एरिया का डेफिनेशन क्या है? लैंड Which And connects joining. us. land adjoining seas is known as coastal areas. ये coastal areas. उससे क्या बन रहा है? प्लेन्स बन रहे। दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ रहा? प्लीज रीड। हिमालयस Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. माइल्डर विंटर्स माने कम सर्दी रहती है अपने पास। अदरवाइज अगर आप तिब्बत में चले गए, उधर तो कोल्ड डेजर्ट ही है तिब्बत पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, जी सर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इधर तक समझ में आया? क्लियर हो गया? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का क्या है? व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड sir. क्यों बना है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड? For location purpose. नो, नॉट फॉर लोकेशन पर्पस। लोकेशन के लिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दो भी इस्तेमाल होता है। व्हाई लैटिट्यूड इज, व्हाई लैटिट्यूड हैज बीन इमेजिन्ड? इसलिए लैटिट्यूड इमेजिन कर रहे। समझाया था लास्ट क्लास में, ज्योग्राफी के बेसिक लेक्चर्स में। Insolation. व्हाट इज इंसोलेशन? व्हाट इज इंसोलेशन? व्हाट इज इंसोलेशन? Incoming. इनकमिंग Sunlight कितना है इसमें है? इनकमिंग energy. सोलर रेडिएशन Radiation. टू मेजर द इंसोलेशन। अगर आप ऊपर गए, ऊपर क्या पढ़े थे अपन अभी? ये क्या पढ़े थे इसमें? ये क्या पढ़े थे? ये किस पे पढ़ रहा? सन इक्वेटर पढ़ रहा? और Equator. इक्वेटर क्या है? ये Equator. लैटिट्यूड ही तो है ना ये। व्हाट इज इक्वेटर? Yes, sir. yes, इक्वेटर इज नथिंग बट 0 Yes, डिग्री 0 degree latitude. 0 degree. 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। Tropic of Cancer. व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? Yes, 23 23 and a half degree. degree लैटिट्यूड। फिर ऊपर क्या है इधर? फिर इक्वेटर पे आ गया, फिर 0 डिग्री से इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। फिर आगे इधर आ गया तो 23 एंड हाफ 23 and a half साउथ degrees. लैटिट्यूड। South latitude. फिर समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? Equator. क्लियर? Sir. सो जी सर। लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Insolation. लैटिट्यूड? Insolation. इंसोलेशन। Major. ठीक है, Incoming of इनकमिंग solar सोलर radiation. रेडिएशन। लैटिट्यूड उसके लिए है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अगर लाइट पड़ा तो ज्यादा गर्मी रहती। एंड द सन रेज बिकम स्लैंट। उधर क्या हो जाता? मिनिमम रेस आ जाता, मिनिमम सनलाइट आती। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्लीज एक्सप्लेन में। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। ये पार्ट हो गया अपना। वी आर एंटरिंग इनटू द, अब जमीन पे आ रहे।
we have finished being in the atmosphere. Now we are coming to the earth. And अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे, ठीक है? तो प्लीज क्या है डायग्राम? कैन यू एक्सप्लेन द डायग्राम? डायग्राम क्या दिख रहा है इधर? व्हाट इज द डायग्राम? जैसा जैसा माउंटेन की एलिवेशन बढ़ रही सर, वैसा वैसा डायरेक्ट सनलाइट का पहले- इफेक्ट कम है। सुनो 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 सुनो, पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? 0 meter altitude, जीरो एल्टीट्यूड माने ग्राउंड लेवल, sea level. ग्राउंड sea लेवल। level, sea level. ये ग्राउंड लेवल का डायग्राम है, ठीक है? ये ग्राउंड लेवल का डायग्राम है। इसके बाद ये सी आता, ठीक है? ये सी है, MSL बोलते हैं इसको, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल। ये 0 डिग्री, ठीक है? जैसा ऊपर क्या है अपना पहाड़ दिख रहा, अगर जैसा दिस इज अ रिलीफ फीचर, जब व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट, यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीफ फीचर्स। रिलीफ माने एल्टीट्यूड और हाइट। जैसा आप ऊपर जा रहे, जैसा आप ऊपर जा रहे, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा? कम हो रहा। इसका मतलब क्या है? द रिलीफ फीचर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Temperature. टेम्परेचर the relief feature is inversely proportional to what? Right. इनकमिंग रेस ऑफ Wait, टेम्परेचर। there is a disturbance from behind. Who is that? देख, रिलीफ जैसा हाइट बढ़ रहा तो टेम्परेचर कम हो रहा, घट रहा या बढ़ रहा? कम हो रहा। कम हो रहा सर। कम होते जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीफ एंड टेम्परेचर? जैसा रिलीफ Inverse. बढ़ता, टेम्परेचर क्या होता? घटता। जैसा रिलीफ कम कम होता। होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तो एक याद रख लीजिए आप, रिलीफ, ये एक मेक इन योर नोट्स, मेक अ कॉलम रिलेशन बिटवीन रिलीफ एंड टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Inverse. इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने क्या? लाइक When relief Something increases, temperature other- decreases. टेम्परेचर डिक्रीज, Decreases. ठीक है? अब टेम्परेचर सी लेवल पे टेम्परेचर कितना रहता? 30 degrees. 30 डिग्री। जैसा ऊपर गए 1000 मीटर ऊपर चले जाओ, कितना है? 23 degrees. 23.5 डिग्री। और ऊपर 1000 मीटर ऊपर चले जाओ, 70. और ऊपर चले जाओ 10.5 degree. 10.5 degree. To explain, to understand it better, I think I have given this example in our offline classes also, in Tolizaki, in M1M classes. So, ये movie देखे थे आप? How many of you watched this Iron Man first movie? Iron Man 1. Iron Man 1 देखे? No sir. No, sir. उन्हें जब आयरन मैन सूट बना देता, उन्हें एक्सपेरिमेंट करता, इधर ग्राउंड से एकदम ऊपर चले आता, फ्रॉम दिस ग्राउंड ही गोस एकदम One टॉप step. in the universe, and the moment he goes very top, he starts freezing. उसका जो सूट है पूरा क्या बन जाता? आइस कोल्ड, इट बिकम्स आइस। उसके बाद में पूरा फिर नीचे आ जाता। जैसा नीचे आता, फिर उसका जो आइस क्या पूरा क्या बोलते हैं, व्हाट यू कैन से, Melt हो जाता. मेल्ट होता। तो प्लीज वॉच दिस आयरन मैन का, you can understand that as you go up the temperature decreases, and as you come down from up the temperature increases. समझ में आ रहा? Now this is the
दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच वी हैव टू हैव। अब देखिए, आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आप। अब थोड़ा सा क्या है, जगह का नाम अभी देख लेंगे। तो सबसे ऊपर क्या रहता, सबसे नीचे जमीन पे क्या है? अब एलिवेशन, जरा एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं आप, जब ऊपर जा रहे तो क्या है, क्या बन रहा? Troposphere, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर, stratosphere, उसके ऊपर mesosphere, thermosphere, थर्मोस्फियर के बाद Thermosphere. Ionosphere. Exosphere. Exos. एक्सोस्फियर के अंदर फिर आता, फिर एक आइनोस्फियर है, फिर उसके ऊपर ऐसा ऊपर ही ऊपर जाते रहते, नहीं मां ठीक है। आइनोस्फीयर तो सबसे सबसे पहले ट्रोपोस, ट्रोपो, ट्रोपो फिर ट्रोपो के बाद एक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। गेम्स खेले कभी, वीडियो गेम खेले Yes. तो उसमें पॉज बटन रहता। ऐसा तो अगर आप ट्रोपोस्फियर को पॉज कर दिए तो क्या बनता? ट्रोपोपॉज, फिर ठीक है। उसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। stratosphere, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर गए, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिए, ये क्या हो गया? स्ट्रेटोपॉज। फिर स्ट्रेटो, फिर उसके ऊपर मिडिल, मीसो माने मिडिल, मैसो मीसो माने मिडिल। फिर मीसो के ऊपर ऊपर जा रहे, ये लाइन क्या हो गई? थर्मो लाइन हो क्या गई। हो गई? Mesopause. मीजोपॉज। मीजोपॉज के ऊपर जा रहे, Thermosphere. थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के ऊपर गए तो ये क्या हो गया? एक मिडिल लाइन आती, उसको बोलते हैं Exosphere. थर्मोपॉज। फिर उसके ऊपर एक्सोस्फियर आ रहा। एक्सोस्फियर के दो हिस्से हैं, फिर एक आइनोस्फियर, फिर उसके ऊपर एटमॉस्फियर। समझ में आ रहा? सर वो जो लाइन है ना वो लिमिट है क्या? वो स्पीयर वो लिमिट में रहता बोल के यस, बोल तो वो एल्टीट्यूड में रहता बोल के। यस, ओके यस, ट्रोपोस्फियर। और देखिए, ये अपना सन, ये अपना अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ, ठीक है। अर्थ में दो हिस्से हैं, कौन से दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं? Northern hemisphere, southern hemisphere. इक्वेटर, पोल्स। इक्वेटर, पोल्स। अब ट्रोपोस, अपना अपना क्लाइमेट का डायरेक्टर कौन है? वो इज द डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट, सन सन। अगर ट्रोपोस्फियर, अगर आप ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे बात कर रहे हैं, अगर यू आर मेजरिंग द ट्रोपोस्फियर विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, इट विल बी हाई, इट विल बी हाई बिकॉज इट इज सन रहता, इधर सन बराबर रेस आते। अगर यही ट्रोपोस्फियर आप पोल्स पे बात कर रहे हैं, इट विल बी लो। ये हाई माने इसका रीजन क्या रहता? इट विल बी हाई, इट विल बी लो। ये जो रीजन दिख रहा आपको, समझे? the width of this regions increases and decreases with respect to equator and poles, ठीक है। अगर आप पोल पे देख के मेजर करें, आपको मेजरमेंट अलग आता। अगर आप पोल पे देख के क्या बोलते हैं, इफ यू आर मेजरिंग विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, द विड्थ विल बी डिफरेंट, द हाइट विल बी डिफरेंट। समझ में आ गया? ऐसा तो सबसे पहले कौन सा स्फीयर आता? Troposphere. उसके बाद Stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद Mesosphere. मीजोस्फीयर, उसके बाद Thermosphere. थर्मोस्फीयर, ठीक है। और सबसे पहले अपन क्या देखे थे? अब आज सबसे पहले क्या देखे थे? Climate. क्लाइमेट। क्या क्या है क्लाइमेट में? Heat, dry, cyclone, wild forest, ये क्या है? glaciers. फॉरेस्ट फायर Heat. ग्लेशियर्स ये क्या है? हीट है, Yes, सॉइल sir. है, ड्राइनेस,
फिर उसके बाद में Yes, sir. साइक्लोन्स है, ड्राई फिर जी, sir. फॉरेस्ट फायर्स है, फिर Yes. ग्लेशियर्स है। Glaciers. ये Yes. सब चीजें किसमें पढ़ रहे हैं अपन? ऑल दीज थिंग्स, क्लाइमेट all these things we are understanding in this region only. ये सब चीजें किधर हो रहे? ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर में ही हो रहे। All the atmospheric conditions are being developed only and only in troposphere. Troposphere. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. स्ट्रेटोस्फियर में क्या रहता? What is in stratosphere? We have Asman. Sky. स्काई। जैसा आप स्काई की तरफ जा रहे, तो ट्रोपोस्फियर में देख अपना सन इधर बैठे हुआ है, सन इधर है, जी, sir. क्या फेंक रहा उन्हें? Sun rays. सनरेज। सनरेज क्या है? यूवी रेस है। Right. यूवी Right, रेस sir. में क्या आ रहा है इधर? ये जो एरिया है इधर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में वी हैव Right. ओजोन लेयर, Ozone and cloud formation. 1 minute we have, ओजोन sir. एंड क्लाउड्स। ये क्लाउड्स, ओजोन एंड क्लाउड्स क्या कर रहे? ये जो यूवी रेस है दे आर स्टॉपिंग इट, और इसको छान के दे आर सीविंग एंड डिसेंडिंग टू द ट्रोपोस्फियर। समझे? तो सबसे ज्यादा Yes, क्वेश्चन sir. आपको आता, ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। ओजोन लेयर एंड क्लाउड्स Stratosphere. आर इन द स्ट्रेटोस्फियर रीजन। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ Yes, sir. सेशन इज गोइंग टू एंड विद इन सेकंड्स, आई थिंक आधा मिनट